Assalamu alaikum, I'm Afia Shams, and once again, welcome to the lecture of English Foundation class. And I'm just um, sharing the link with my students so that they will join me and we will start the lecture. So just give me a second so I can share the link with my students. I'm asking them to join the lecture as soon as possible so I can start. I've already started late because I was waiting for everyone to come and give me confirmation that they are present because daily a lot of time is being wasted in the waiting and students join late, then I feel bad about them. So I want them to come on time and join the class and be present and participate, because without students' participation, there is no point in uh, delivering a lecture unless or until the students are not participating actively. So I guess no one is that active today except Rosina, and she hasn't joined yet. I'm again asking them to join the lecture. So, in the last lecture, we discussed contractions and low. Rosina आ गई है. Hello, Rosina. How are you? Hello, Rosina. How are you? Rosina is on mute. I cannot listen to you, Rosina. Unmute yourself and talk to me. Assalamualaikum ma'am, I'm fine. How are you? Walaikum Assalam. I'm fine as well. How was your day? Your friend has also arrived. सोनिया. आज आप सोनिया से पहले आए हैं, अदरवाइज सोनिया पहले होती है. मैम सोनिया भी अभी ज्वाइन कर लेगी. हाँ, कर लिया उसने. आ गया नोटिफिकेशन. And my day was very beautiful. That's really great. That's so wonderful to know. What made your day great? I'm asking you, what made your day great? Sorry ma'am. I asked, what made your day great? What is the reason behind the greatness of your day? What was special about today that made your day great? Today I made many more shopping. Wow. Shopping is That's why I am happy. shopping. Shopping makes us happy. Shopping makes me. Yes ma'am. So that's wonderful. How are you, Sonia? Hello, Sonia. How are you? Good evening, ma'am. I am good. Good evening. I was doing a text on in the group. So, Sonia, how was your day? My day was good. That's wonderful. Um, my mother in my home, Wow. That's that's actually and wonderful. now I am tired because Because you I had to do work. shopping You did shopping today. together, you and Rosina, or separate? Separately, ma'am. Oh. So I just reached home at home I, now I and just just reached joined the lecture. I just reached home was correct. At की जरूरत नहीं है. But Okay, good, okay. good, good effort, Sonia and Rosina. I really like the way you both of you talk and the way you practice.
both of you are really improving day by day. I Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. as in the beginning of the session, I told all of you that it is your participation and your practice that is going to make improvements. I can only show you the way, I can guide you, but at the end of the day, it depends on you, how you want to improve yourself, how much input you give in this journey of speaking. So I guess no one is no, interested in joining the lecture today because it is already late. So I'm starting the lecture. बाकी सब जो है वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे और अगर कोई बीच में ज्वाइन करता है तो आई विल ऐड देम. Okay, ma'am. हाँ, थोड़ा सा मुझे ये बताएं, डू यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज पढ़ी थी, Yes, ma'am. क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था. सही. और what are contractions and did you use contractions in your conversation today? No, ma'am. That's not good. You should use contractions, okay? Uh, for example, जैसे आपने मुझे बताया था कि I went for shopping, ठीक है. या मतलब जिस तरह आप आपस में बात करते हैं, लाइक व्हाट आर यू डूइंग की बजाय आप कह सकते हैं व्हाट यू डूइंग, ठीक है, व्हाट यू डूइंग. इस तरह करके छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स करें. आई नो Yes. इन द बिगनिंग कॉन्ट्रैक्शंस यूज करना जो है ना वो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट जैसे जैसे आप करते जाओगे ना नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगा. और साथ साथ आप ना देखो भी, देखा करो कुछ ना कुछ इंग्लिश में ना, कोई मूवी देख ली, कोई पॉडकास्ट, फिर जरा और उससे आप इंस्पायर होते हो और आपकी Yes, ma'am. आप दैट दैट रियली हेल्प्स यू इन इन योर प्रैक्टिस एज वेल. चलिए कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हमने, काफी सारी कॉन्ट्रैक्शंस जो थी वो लास्ट लेक्चर में देखी थी, उनकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको विद प्रैक्टिस सिखाई थी कि किस तरह से उन्हें आपने इम्प्लीमेंट करना है. एंड इन दिस लेक्चर आई विल कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट. और there is a very important contraction, a very important word, that is gonna, and used uh, it is used in speaking a very like बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, बहुत अबंडेंटली यूज होता है ये. बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले ये चारों वर्ड्स हैं. गोइंग टू को हम गोना बोलते हैं, वांट टू को हम वांना बोलते हैं, गॉट टू को हम गॉट बोलते हैं, लेट मी को हम लेट मी बोलते हैं. So this is how you use contractions, and contractions are two words. Contraction is one word that is made up of comprise by comprising two different words, ठीक है. जैसे going to से हमने एक वर्ड बना लिया gonna, उसको शॉर्ट कर लिया, ठीक है. और स्पीकिंग में ऐसे ही लोग जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं वो इस तरह से बोलना पसंद करते हैं. तो इसकी एग्जांपल है जैसे आई एम गोइंग टू गो टू द स्टोर की बजाय आई एम गोना गो टू द स्टोर, ठीक है, मैं स्टोर में जा रही हूँ. want to, डू यू वांना गेट सम कॉफी, जैसे हमने अगर कहना डू यू वांट टू गेट सम कॉफी की बजाय डू यू वांना गेट सम कॉफी, डू यू वांना टेक अ शावर, डू यू वांना गो आउट, इस तरह, ठीक है, want to की बजाय wanna. और वांट, अक्सर वो वांट भी कॉन्ट्रैक्शन है ना, पिछले हमने लेक्चर में देखी थी कि वुड नॉट या विल नॉट को शॉर्ट करके वांट बोलते हैं और वांट टू को वाना बोलते हैं. तो इस तरह से बोलने में इसलिए हमें लगता है कि हमें इंग्लिश आती तो है, लेकिन हम जब सुनते हैं तो हमें समझ क्यों नहीं आ रही होती, वो इस वजह से आ रही होती, मतलब मुश्किल पेश आती है. बिकॉज दिस इज हाउ द इंग्लिश स्पीकर स्पीक. वो उस तरह से नहीं बोलते जैसे बुक्स में लिखा होता है, वो इस तरह से बोलते हैं. तो कॉन्ट्रैक्शंस जो थी वो हमने काफ़ी हद तक पिछले लेक्चर में की थी. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज
फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। अब ये एक शॉर्ट सी स्टोरी क्या है, जैसे आप लोग अपनी रूटीन बताते हैं, ये मैंने एक शॉर्ट सी स्टोरी आप लोगों के लिए बनाई है। सोनिया सोनिया का भी डिस्कनेक्ट हो गया है। रोजीना एक जरा ना ग्रुप में मैसेज कर दें आप कि सारे लोग कहाँ गायब हैं ओके जरा। मैम, मैं कर देती हूँ। हाँ, एक मैसेज कर दें, बिकॉज रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं बार बार मैसेज की तरफ करूंगी ध्यान तो सारा वो रिदम टूट जाएगा। अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो होगी, सब देख लेंगे। The story is, I woke up early in this morning and decided to clean up my room. I almost gave up, but I had to deal with all the old magazines. After I finished, I turned on the TV to relax. अब ये देखिए, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हाईलाइट किए हुए हैं, आप देख सकते हो। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठी। ये उसने आज की स्टोरी सुनाई है ना, पास्ट टेंस। डिसाइडेड टू क्लीन अप माई रूम, मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना जो रूम है उसकी सफाई करनी चाहिए, क्लीन अप। आई ऑलमोस्ट गेव अप, मैंने मतलब हिम्मत हार दी, मुझसे और नहीं हुआ। बट आई हैव टू डील विद द ओल्ड मैगजीन्स, मतलब मुझे सारे जो ओल्ड मैगजीन्स थे उनको उठा के रखना पड़ा, साफ करना पड़ा। आफ्टर आई फिनिश्ड, जैसे ही मैंने फिनिश कर लिया अपना काम, आई टर्न ऑन द टीवी टू रिलैक्स, फिर मैंने टीवी ऑन करके जरा रिलैक्स किया। इसमें अब आप कुछ वर्ड्स देख सकते हैं विच आर हाईलाइटेड, लाइक वोक अप, क्लीन अप, गेव अप, डील विद, टर्न ऑन। ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जो हम दो वर्ड्स को मिला के एक ऐसा वर्ड बनाते हैं जो कि नए मीनिंग बन जाते हैं जिसके, ठीक है। मतलब दो हमने वर्ड्स थे, दो फ्रेजेस, दो वर्ब्स को मिलाया या नाउन और वर्ब को मिलाया और एक ऐसा लफ्ज बना दिया जिसके मीनिंग ओरिजिनल से थोड़े चेंज हो गए। जैसे वोक अप, ठीक है, सुबह उठना। क्लीन अप, सफाई करना। गेव अप, अब देखिए गिव का मतलब तो होता है देना, अप का मतलब होता है ऊपर, बट जब हमने गिव और अप को मिलाया तो ये एक नया वर्ड बन गया। गिव अप का मतलब होता है बिल्कुल क्विट कर देना, ठीक है, हिम्मत हार देना किसी चीज को, बस कहना कि बस अब मुझसे नहीं होती, आई गिव अप। जब आप कहते हो ना आई गिव अप, जब आप हिम्मत हार जाते हो तो यू से आई गिव अप, आई कैन डू इट एनी, ठीक है। तो ये देखिए, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ वर्ड थे जिनका एक नया वर्ड बना और इसकी मीनिंग भी बिल्कुल चेंज है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ड्स, ठीक है। और ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। और इफ वी वांट टू स्पीक फ्लुएंटली, इफ वी वांट कि हमें हम जो सुने हमें उसकी समझ आए और हम बहुत साफ साफ बोलें, तो along with अदर टिप्स एंड ट्रिक्स हमें फ्रेजल वर्ब्स को भी सीखना होगा और डेली बेसिस पे कुछ न कुछ फ्रेजल वर्ब्स को सीखना होगा और उनको अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करना होगा। यू शुड यूज सम फ्रेजल वर्ब्स इन योर डेली प्रैक्टिस, और ताकि आपको, एक तो ये कि आपको समझ आ सके जब आप सुनो इंग्लिश, और सेकंड ये कि आप उनको यूटिलाइज भी कर सको इन योर स्पीकिंग एंड इन योर राइटिंग टू साउंड मोर पॉलिश, ठीक है। तो तायरा आ गई है। हेलो तायरा, हाउ आर यू? आप बहुत इरेगुलर बच्चा बनती जा रही हैं, डेली कम कम आती हैं लेक्चर अटेंड करने। तो ये अब देखें कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब्स हैं। आज ताहिरा के लिए मैं बताती चलूं कि आज हम देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स को, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स आपने बचपन में भी पढ़े होंगे। इस तरह के वर्ब्स होते हैं, इस तरह के लफ्ज होते हैं जो हम दो डिफरेंट वर्ड्स को मिलाते हैं और एक नया वर्ड बना देते हैं जिसके आमतौर पे मीनिंग्स भी जो होते हैं वो असल दोनों लफ्जों से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि ये कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनको हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। जैसे टर्न अप, टर्न डाउन। टर्न टर्न अप का मतलब होता है उठना, ठीक है। टर्न डाउन का मतलब होता है जब किसी की, आप किसी की ऑफर को मैं आपको कहती हूँ कि क्या आप
आज लेक्चर में आएंगे तो आप कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती, तो यू टर्न डाउन माय ऑफर। किसी की ऑफर को जब आप रिजेक्ट करते हो, टर्न डाउन किसी चीज को रिजेक्ट करना। तो देखें, टर्न का मतलब और है, डाउन का मतलब और है, बट इन दोनों को जब हमने साथ जोड़ा और एक नया लफ्ज बनाया तो उसके बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाते हैं। पिक अप उठाना, पुट ऑन, ठीक है, पुट ऑन हो गया, लुक आफ्टर हो गया, देखभाल करना, ग्रो अप हो गया। ग्रो अप का मतलब होता है कि आप जब किस आपकी जो परवरिश होती है उसको ग्रो अप कहते हैं। टेक आउट, कोई चीज बाहर निकालना। लुक फॉर, किसी चीज के लिए देखना। जैसे पुट ऑन होता है और पुट ऑफ होता है। पुट ऑन शर्ट पहनना एंड पुट ऑफ कपड़े या शर्ट उतारना। तो इस तरह के डिफरेंट, अभी हम कुछ और लिस्ट भी देखेंगे, इसमें हम इस तरह के वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे। और आपको चाहिए कि आप डेली बेसिस पे जो अपनी प्रैक्टिस करते हो उस पे, जहाँ पे आप अपनी वोकेबलरी में वैसे इजाफा कर रहे हो, यू शुड लर्न न्यू फ्रेजल वर्ब्स। ये छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि एक वर्ब होता है टर्न, इसके साथ कितने और इसके फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, कितनी प्रपोजिशन इसके साथ हम ऐड करें तो नए वर्ड्स बनते हैं, उनको आप सीखें। फिर अगले दिन आप टेक के साथ कितने आ सकते हैं उनको सीखें। मैं वैसे आप लोगों के साथ ना डेली बेसिस पे शेयर भी करना शुरू कर दूंगी। वैसे इस पे मेरी वीडियोस भी है, यू कैन वॉच दोस वीडियोस एज वेल। तो दिस इज ऑल्सो नेसेसरी इफ यू रियली वांट टू स्पीक इन अ पॉलिश्ड एंड गुड वे। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ब। मैंने ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इनफ कि क्या होता है फ्रेजल वर्ब। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड वन और मोर स्मॉल वर्ड्स, यूजुअली अ preposition और एडवर्ब। ये जो preposition और एडवर्ब होते हैं ना, जैसे कि अप, डाउन, ऑन, ऑफ, ये prepositions होती हैं। तो ये एक वर्ब के साथ हम यूज करते हैं तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। और ये बिल्कुल हम नया वर्ड, नया और विथ डिफरेंट मीनिंग एक नया फ्रेजल वर्ब क्रिएट कर देते हैं। और ये चेंज बहुत ज्यादा इसमें मीनिंग में चेंज हो जाता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, लुक। लुक जो लफ्ज है, इसको आप देखिए, ये सिंपल सा लफ्ज है जिसके मतलब होते हैं टू सी समथिंग, देखना। और जब हम लुक के साथ अप लगा देते हैं, ये हमने लुक के साथ अप का एडिशन किया, ठीक है, तो इसके टोटली मीनिंग चेंज हो गए। अब लुक अप कैन मीन सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब लुक का मतलब तो सिर्फ देखना था, बट जब आप लुक अप करोगे तो इसका मतलब ये एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। लुक आफ्टर, अब देखें, लुक लुक के साथ अगर लुक अप हमने लगाया तो इसका मीनिंग होगा टू सर्च फॉर मीनिंग, जैसे टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि लुक फॉर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, या लुक फॉर सम पर्टिकुलर टर्म इन द डिक्शनरी, ठीक है, लुक फॉर दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। तो इस तरह से यूज होगा। बट अगर हम लुक के साथ आफ्टर लगा देते हैं तो इसके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ समथिंग, समथिंग और समवन, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि आई लुक आफ्टर माई किड्स, मैं अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ, या माई मदर लुक आफ्टर अस, मेरी माँ, अम्मी मेरा हमारा ख्याल रखती हैं। तो अब देखिए, दिस इज हाउ फ्रेजल वर्ब्स आर मेड। कि फ्रेजल वर्ब में दो डिफरेंट वर्ड्स को लेते हैं, मतलब वो इसी तरह समझ लें कि दो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जिनको आपने जोड़ा तो वो बिल्कुल ही एक नया और डिफरेंट मीनिंग के साथ वर्ड बन गया। और इसको याद ऐसे ही, मतलब इसको सीखने का तरीका यही है कि आप डेली बेसिस पे कुछ नए वर्ड्स देखें, उनको आप मेमोराइज करें और उनको यूज करें अपने सेंटेंसेस में, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये कुछ डेली लाइफ, कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं विच आर यूज इन डेली लाइफ। वालेकुम अस्सलाम। चलें, बस ट्राई, तायरा की चैट का आंसर कर रही हूँ मैं। तायरा, वालेकुम अस्सलाम। और ट्राई टू बी रेगुलर, क्योंकि बाद में लेक्चर देखने का भी आप लोगों की ज़ाहिर बिजी रूटीन है,
तो उस तरह से आप नहीं देख पाते। तो इट्स बेटर कि आप साथ साथ लेक्चर को देखें और उसके बाद फिर आप रिकॉर्डिंग देख लें, सो दैट कि चीज़ें रिपीट हो जाए, तो उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। आपको रिकॉर्डिंग भी देखने में ज़्यादा समझ तभी आती है जब आप लेक्चर अटेंड किया होता है। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब देखें, वेक अप टू स्टॉप स्लीपिंग, ठीक है, जब सो के उठते हैं हम, दैट इज वेक अप। गेट अप टू राइज फ्रॉम द बेड। वेकअप होता है जब हमारी आंख खुलती है, हम जागते हैं, ठीक है, दैट इज वेकिंग अप, मतलब स्लीप से उठना। और गेट अप का मतलब होता है जब आप उठ जाते हो, जब आप अपना बेड छोड़ देते हो, दैट इज गेट अप। अब गेट ये ऐसा लफ्ज है जिसके साथ हजारों लफ्ज जोड़ के आप बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो। पुट ऑन, पुट का तो मतलब पुट तो एक अलग वर्ब है ना, इसके साथ जब हम ऑन लगाते हैं तो दैट मीन्स वियर क्लोथिंग, ठीक है। टेक, टेक का वैसे मतलब होता है देना, ठीक है, बट या लेना। टेक ऑफ जब हम लगाते हैं, टेक के साथ ऑफ लगा देते हैं, तो दैट मीन्स टू रिमूव क्लोथिंग, जब आप कपड़े चेंज करते हो, when you remove clothing, that is take off, taking off the shirt, ठीक है, taking off the scarf, इस तरह से। क्लीन अप टू मेक समथिंग टाइडी, ठीक है, जब आप सफाई करते हो, अच्छी सी नीट एंड क्लीन चीजें करते हो, चीजों को अपनी जगह पे रखते हो, दैट इज क्लीनिंग अप। पुट अवे, अब देखें, पुट ऑन था टू वेयर अ क्लॉथ, और पुट के साथ जब हम अवे लगा देंगे तो दैट मीन्स टू पुट समथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस, ठीक है, जब आप चीजों को अपनी जगह पे रखते हो तो दैट इज कॉल्ड पुट अवे। टेक, टेक के साथ हमने ऑफ लगाया था तो उसका मतलब था कपड़े रिमूव करना, ठीक है, चेंज करना। टेक आउट जब हम लगाए करेंगे, इसके साथ हम आउट ऐड कर देंगे तो दैट मीन्स टू रिमूव समथिंग लाइक गार्बेज, ठीक है। आप कहते हैं टू टेक आउट गार्बेज आउट ऑफ द हाउस, या टू टेक आउट समथिंग, जैसे जब कोई चीज उठा के आप बाहर फेंकते हो तो उसके लिए आप टेक आउट का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। इसी तरह एक वर्ड होता है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है कि जब हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स या अपने बड़ों के जैसे होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि माय डॉटर टेक्स आफ्टर मी, कि मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पे गई है। टेक के साथ जब हम आफ्टर लगाते हैं तो उसका ये मतलब बनता है कि जो मतलब बिल्कुल अपने, टेक आफ्टर मीन्स टू लुक लाइक समथिंग समवन, और टू एक्ट लाइक समवन, स्पेशली योर एल्डर्स और योर पेरेंट्स, ठीक है। तो जो हम उर्दू में कहते हैं ना कि ये बच्चा अपनी माँ पे गया है, ये बच्चा अपने बाप पे गया है, तो उसके लिए आप एक फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं कि दिस किड टेक्स आफ्टर हर मदर, या दिस किड टेक्स आफ्टर हिज फादर, ठीक है। तो टेक आफ्टर का ये मतलब होता है, ये मुझे मेरा बड़ा फेवरेट फ्रेजल वर्ब है, टेक। तो देखिए, इस तरह से छोटी सी एडजस्टमेंट, छोटे छोटे वर्ड हैं लेकिन ये कितना ड्रामेटिक इफेक्ट डालते हैं। और जब हम देखते हैं कि इंग्लिश, रिटन इंग्लिश को देख लें, या जब हम सुनते हैं, देखते हैं मूवीज, तो उसमें ये फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं। और ये किस तरह से हमें आएंगे, जितना हम ज्यादा बोलेंगे, जितना हम ज्यादा देखेंगे, जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे, जितनी हम ज्यादा कोशिश करेंगे ऑन डेली बेसिस, उतने ही ज्यादा हम इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। और जो लर्निंग का प्रोसेस होता है, दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इवन आई हैव बीन टीचिंग like for many years, and I have been learning English since my childhood. All of us are learning English since our childhood. Still, uh, अभी भी मैं ये बिल्कुल कन्विक्शन के साथ नहीं कह सकती कि सारा कुछ सीख लिया है, बल्कि मतलब देखें, सुबह मैं सो के उठती हूँ तो आई स्टार्ट टीचिंग, आई स्टार्ट रीडिंग, आई रीड लॉट, आई रीड ऑन डेली बेसिस, आई राइट ऑन डेली बेसिस, आई टीच ऑन डेली बेसिस, ठीक है। तो डेली बेसिस पे बहुत सारी नई चीजें होती हैं जो सीखने को मिल रही होती हैं।
तो बिल्कुल हम 100% कन्विक्शन के साथ ये तो कह ही नहीं सकते कि इतने महीनों में या इतने सालों में हम इतना कुछ सीख जाएंगे, बट यस, इट इज लाइक जितनी ज्यादा आप एफर्ट पुट करते जाते हो उतना ज्यादा आप सीखते जाते हो, उतना ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस आता जाता है, और उतना ही आप हर दिन बेहतर होते जाते हो। समीना, आपने बहुत देर कर दी है ज्वाइन करने में, आधा लेक्चर हो गया है। और आज हमने इस लेक्चर में, अब आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, एंड लेट मी जस्ट गिव शॉर्ट ब्रीफिंग टू समीना, बिकॉज समीना हैज जस्ट ज्वाइंड अस, तो फिर बिल्कुल उनके लिए फॉलो करना मुश्किल ना हो जाए। और आप जो लोग ऑलरेडी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनकी भी रिवीजन हो जाएगी। तो समीना, दिस इज स्पेशली फॉर यू आज के लेक्चर में, और तायरा की भी रिवीजन हो जाएगी। आज के लेक्चर में सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, बिकॉज लास्ट लेक्चर में वी लर्न कॉन्ट्रैक्शंस, तो कुछ कॉन्ट्रैक्शंस जो थी वेरी इंपॉर्टेंट थी, वो रह गई थी। इसमें ये 4 कॉन्ट्रैक्शंस आज हमने देखी थी, गोना, वाना, गॉडा और लेट मी। तो गोइंग टू को हम शॉर्ट करके गोना बोलते हैं, लाइक आप कहते हैं आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोना डू दिस, ठीक है। आई एम गोना गो टू द स्टोर, आई एम गोना गेट शावर। और ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला एक्सप्रेशन है, और आप भी इसको लर्न करें और इसको एज मच एज यू कैन इसको यूटिलाइज करें इन योर, स्पेशली इन योर स्पीकिंग एक्सप्रेशन, एंड दिस विल मेक यू साउंड रियली पॉलिश्ड, मेक यू साउंड रियली फ्लुएंट एट स्पीकिंग, ठीक है। उसके बाद है वाना, वांट टू को हम वाना बोलते हैं। डू यू वाना गेट सम कॉफी, do you want to go out, do you want to do this, do you want to do that, I don't want to do this, I don't want to go out, like so on and so forth। इस तरह से इनकी आप प्रैक्टिस करें, इनको बोलें। उसके बाद है गोटा, गॉट टू। आई गॉट टू का मतलब होता है कि बस अभी करना, आई गॉट फिनिश, मतलब गॉट टू जो है ना, ये हैव टू है, इसका मतलब होता है हैव टू, ठीक है। हैव टू और गॉट टू जो है ना, ये सिमिलर मीनिंग रखते हैं, बट इन स्पीकिंग यू यूज गॉट टू, और इसको भी आगे फिर और यूज और शॉर्ट करके गॉटा, गॉडा। और ये टी की थोड़ी सी आवाज होती है ना, ये डी टंग को फोल्ड करके बोलते हैं गॉडा, इस तरह करके, ठीक है। टा नहीं बोलते, गॉडा। आई गॉट फिनिश माई वर्क, और लेट मी का मतलब होता है मुझे करने दो, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा था लेट मी टेल यू, कि मैं आपको बताती हूँ, लेट मी टेल यू। जो अब वो टी टी अक्सर खा जाते हैं जो होते हैं इंग्लिश स्पीकर, तो टी को साइलेंट करके लेट मी टेल यू दिस, मैं आपको ये बताऊँ, लेट मी शो यू दिस, मैं आपको ये दिखाती हूँ, मुझे ये दिखाने दो, ठीक है। ये मैं आए आपको मैं ये दिखाऊं, लेट मी शो यू माय फोन, लेट मी शो यू दिस पिक्चर, ठीक है। इस तरह से आप इनको बोलते हो, इन एक्सप्रेशंस को। एंड आफ्टर दैट वी लर्न फ्रेजल वर्ब्स। आज की हमारा अगला टॉपिक था फ्रेजल वर्ब्स, बिकॉज whatever it is, either it is speaking English or it is writing English, phrasal verbs are very important. They are used in writing as well as in speaking very frequently, ठीक है। तो आपको phrasal verbs का पता होना चाहिए, ये क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो phrasal verbs are words जो दो दो डिफरेंट वर्ड्स को, मतलब एक वर्ब के साथ मोस्टली हम preposition या एडवर्ब को ऐड करते हैं, तो उसका बिल्कुल उस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो ओरिजिनल मीनिंग से डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि टर्न अप, टर्न डाउन, अब ये कहने को तो दो वर्ड है ना, टर्न के साथ ही है, बट टर्न अप का मीनिंग डिफरेंट है, टर्न डाउन का मीनिंग डिफरेंट है। पिक अप है, ठीक है। पुट ऑन है, पुट ऑफ है। पुट ऑन का मतलब होता है टू वियर अ शर्ट, टू वियर अ क्लोथिंग, कोई मतलब कपड़ा पहनना। जैसे अब आप शर्ट पहनते हो तो यू से आई 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 जस्ट पुट ऑन दिस शर्ट, मैंने अभी ये शर्ट पहनी है, आई पुट ऑन दिस स्कार्फ। बट इफ यू से पुट ऑफ, दैट मीन्स पुट ऑफ भी कह सकते हो, टेक ऑफ भी कह सकते हो, ठीक है। टेक ऑन एंड पुट ऑन, टेक ऑफ एंड पुट ऑफ। पुट ऑफ कहते हो तो उसका मतलब हो जाएगा उतारना, ठीक है, टू रिमूव अ क्लोथिंग। इसी तरह लुक आफ्टर का मतलब होता है
लुक का मतलब तो वैसे होता है देखना, बट लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी का ख्याल रखना, जैसे कि बड़ों का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। टेक आप, अगर ग्रो आपका मतलब होता है परवरिश, मतलब कि ग्रो आपका मतलब होता है परवरिश पाना, ठीक है। इसी तरह ये डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। सेम ही वर्ड के साथ जब हम डिफरेंट प्रेपोजिशन लगाते हैं उसका मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैंने इधर बताई है। जैसे कि लुक अप का मतलब होता है टू सर्च फॉर सम इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इन द डिक्शनरी, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि ये इस टर्म का मीनिंग देखो डिक्शनरी में। बट व्हेन आई विल से लुक आफ्टर, तो उसका मतलब टोटली डिफरेंट हो जाएगा। लुक आफ्टर मीन्स टेक केयर। लुक आफ्टर को हम ऐसे यूज करेंगे, शी लुक्स आफ्टर हर किड्स, वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, ठीक है। या हर हस्बैंड लुक आफ्टर हर किड्स व्हेन शी इज ऑन ड्यूटी, या व्हेन शी इज ऑफ टू द जॉब। जब वो जॉब पे होती है तो उसके पीछे से उसके हस्बैंड उसके बच्चों का ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ the phrasal verbs are made, and this is how their meanings dramatically change with the change of preposition we add with them, ठीक है। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप मेमोराइज करें, इनको आप यूज करें अपने सेंटेंसेस में, ठीक है। किसी ने कोई, सॉरी, आई जस्ट टुक अ पॉज, आई थॉट कि समवन हैज राइट सम रिटन समथिंग इन द चैट, तो मैंने सोचा कि उसका जवाब दे दिया जाए, बट इट वाज एन ओल्ड नोटिफिकेशन। इसी तरह ये है डेली रूटीन की कुछ, जैसे वेक अप है, गेट अप है, पुट ऑन है, टेक ऑफ है, क्लीन अप है, पुट अवे है, टेक आउट है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप अपनी रूटीन में यूज करते हो और आपको करने चाहिए। एंड यू शुड नो कि स्लाइट स्लाइट चेंजेस के साथ कितना चेंज आ जाता है इन द मीनिंग। उसके बाद ये कुछ सोशलाइजिंग के कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, अ, जो कि आई हैव स्पेशली मेड दिस लिस्ट फॉर यू, एंड दीज आर द फ्रेजल वर्ब जो कि आपको आपको लर्न करने हैं, जो कि आपने कल अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हैंग आउट है टू स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग विद फ्रेंड्स। जैसे अब आज आप शॉपिंग के लिए गए थे अपने फ्रेंड के साथ, तो यू कैन से I hang out with my friend and go for shopping, get together to meet with friends. We had a family get together. We had a get together of friends. ठीक है। Last Sunday we had a get together. We had a family get together. इस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो इनको। एंड देन कैच अप का भी मतलब होता है किसी को काफी टाइम के बाद मिलना। ड्रॉप बाय टू विजिट समवन कैजुअली, ठीक है। आप किसी से मिलने जाते हो तो उसको आप कहते हो आई ड्रॉप बाय हिज हाउस एंड मेट हिम। लुक अप टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, कॉल बैक, हैंग अप टू एंड फोन कॉल कन्वर्सेशन, ठीक है। जब आप बात कर रहे होते हो, जैसे अब आप अपनी कॉन्वर्सेशन करते हो, कॉल रिकॉर्ड करते हो, तो जब आपको लगता है कि बस अब हमारी बात खत्म होगी, तो आप कहते हो आई वुड लाइक टू हैंग अप नाउ, कि अब मैं कॉल बंद करना चाहूंगी, एंड द कॉल दिस, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब, आई गेस दिस इज नॉट रेलिवेंट, ठीक है। बस ये आप को मैं बता देती हूँ, ठीक है। वैसे ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपके टेस्ट टेस्ट वगैरह में ये क्वेश्चन नहीं आता, दैट वाज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, ठीक है। कि बस किस तरह से हमने, अब लिस्टें लंबी हैं, कैसे याद रखें फ्रेजल वर्ब्स को, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेजर दो तरह के फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, एक सेपरेबल होते हैं, एक इनसेपरेबल होते हैं। सेपरेबल ऐसे होते हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पुट ऑन, प्लीज पुट ऑन योर शूज, या प्लीज पुट योर शूज ऑन। अब ये इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स हैं। ये इन दो ये जो दो वर्ड्स हैं ना, इनको आप एक सेंटेंस में साथ के बजाय
फासले पर भी यूज कर सकते हो। जैसे हम इस तरह भी कर सकते हैं कि प्लीज पुट ऑन योर शूज या प्लीज पुट योर शूज ऑन। ठीक है। जैसे कैन आई ट्राई दिस ऑन, ट्राई ऑन। जब हम कहते हैं कोई चीज ट्राई करना, फॉर एग्जांपल जब हम खरीदने से पहले कहते हैं मैं ट्राई कर लूं, कैन आई ट्राई दिस ऑन या कैन आई ट्राई ऑन दिस, मतलब इस तरह से करके ना ये सेपरेबल होते हैं। और कुछ ऐसे बाकी जो इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब होते हैं ना, उनको आप, जैसे लुक आफ्टर है, इसको आप लुक आफ्टर एक साथ यूज करोगे, लुक के दरमियान कुछ और लफ्ज यूज करके आफ्टर अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर आप कहोगे ना शी लुक्स हर लिटिल ब्रदर आफ्टर, ये बिल्कुल गलत होगा, ऐसे नहीं हम यूज करते आई लुक आफ्टर। वर्ड सेपरेबल होते हैं जिनको ये इस तरह से अगर हम यूज करेंगे कि पुट योर शूज ऑन, दैट इज करेक्ट। बट तो इसको इस तरह की लिस्ट, इस तरह की कैटेगरी में आप देख सकते हो। बट ये अभी एट दिस स्टेज ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इतनी नेटी ग्रिटी में आपने नहीं पढ़ना। ठीक है। आप जिस तरह से एक चीज आपके सामने आती है, आप उसको उसी करेक्ट वे में देखो और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो, उसको यूज करो अगेन एंड अगेन द वे यू सी इट। जैसे कि अब ये पुट ऑन है, इसको आप इस तरह से यूज करो। लुक आफ्टर को जैसे आप देख रहे हो उस तरह से यूज करो। तो ये चीजें जो है, इनको इनको वैसे ये है कि ये आपने नहीं अभी याद करनी के क्या सेपरेबल है और क्या सेपरेबल नहीं है। दिस इज टू अर्लियर फॉर गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एडवांस। तो दिस वाज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। आज का लेक्चर जो था ये यहीं तक था। आई विल शेयर, पहले अब आपने ऐसे करना है कि आज के इस लेक्चर में मैंने जो जो आपके साथ फ्रेजल वर्ब दिए है, तकरीबन 15 to 20 फ्रेजल वर्ब की लिस्ट मैंने आपको दी है। ठीक है। इनको आपने मेमोराइज करना है, इनको आपने यूज करना है इन योर कन्वर्सेशन, इन योर सेंटेंसेस। ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैं आपके साथ डेली बेसिस पे नए फ्रेजल वर्ब्स भी शेयर करती रहूंगी। और दिस इज हाउ you should learn new phrases, you should use contractions। देखिए अब ये जो phrasal verbs हैं और contractions हैं, these are very very crucial। ठीक है। in your speaking practice। अब आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं क्योंकि आज का जो हमारा कंटेंट था that has been covered, now we can discuss and we can talk as well. If you have any questions or feedback, or you just want to talk to me, you can unmute yourself and talk to me. If you have any questions, you are most welcome to ask any questions। हमारे पास बस 4 मिनट रहते हैं, तो इन 4 मिनट्स में you can add any value or feedback। I will really like you to speak with me। Smina, रोजीना, सोनिया, तायरा, आप लोग हैं आज के इस लेक्चर में। तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक टू मी। अगर आज के लेक्चर के लिए कोई आपके पास सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क। नहीं है कोई, नहीं कोई बात करनी, मुझसे नहीं बोलना। डोंट यू लाइक टू टॉक टू मी? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम समीना, हाउ आर यू? मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, इसकी समझ आ गई। और वो जो कल 2 दिन पहले का लेक्चर था ना, कुड शुड वुड, वो थोड़ा सा बाद में एक आप थोड़ा सा समझा दीजिएगा। अच्छा, वुड है कुड। वो कौन सा भला? ये वाला कॉन्ट्रैक्शंस वाला कौन? हाँ जी मैम, जी मैम। अच्छा। यानी यहाँ पर कुड है ना, कुड शुड, वो कहाँ पे बोला जाता है ना? हाँ, कुड है, वो शुड ये है। इधर ही है। शुड हैव, हाँ। वुड, अच्छा, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, उसको पता है वो कैसे बोलते हैं? वुड, कुड, शुड। हैव को वैसे ही कहा जाते हैं, वुड, शुड, कुड, इस तरह करके। अब आप जैसे आप मीना
आपने तो दुबई जाना है, माशाल्लाह, यूएई जाना है आपने। वहां पे ऑब्वियसली यू हैव टू स्पीक फ्लुएंटली। तो स्पेशली आप इस तरह की, हाँ ये आ गया, यही वाला ना। ये देखें, ये था डोंट, डिडंट, वांट। अब ये जो था, अब ये देखे, जो कोरे स्पीक, जब मतलब व्हेन एवर दे स्पीक, अब वो वांट कहेंगे तो हमें लगेगा शायद वो वांट चाहने वाला कर रहे हैं, नहीं, वो उस वांट को बोलेंगे वाना। वांट टू ही होता है ना मोस्टली, उसको वो बोलेंगे वाना। और जब वो वॉन्ट कहें तो दैट मीन्स वो कह रहे हैं विल नॉट, दे वॉन्ट बी हियर अंटिल टुमारो, वो यहाँ नहीं होंगे, ठीक है। कैन, अब वो शुड हैव, वुड हैव वाला, हाँ ये आ गया। ये थी मॉडल कॉन्ट्रैक्शंस। कुड हैव, शुड हैव, आई शुड हैव। अच्छा, ये जो होता है ना, अब पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि वुड हैव, शुड हैव का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये किस तरह से यूज होते हैं, और जब ये यूज होते हैं इंग्लिश में, तो इनका उर्दू में क्या मीनिंग बन रहा होता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो आप कर लोगे, बट यू शुड नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूज ऑफ दीज मॉडल वर्ब। अब ये जो है ना, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, ये कहाँ यूज होते हैं? ये आमतौर पे कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होते हैं, जो हमने पढ़े थे ना, कि ऐसे कर लिया होता तो ऐसे होता, तुम ऐसे कर लेते, तुम्हें ऐसे कर लेना चाहिए था, तुम ऐसे कर लेते, ठीक है। अब ये जैसे कुड हैव, यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम मुझे जल्दी बता सकते थे। कुड हैव को ऐसे इस्तेमाल करना है आपने, जब आप, तुम मुझे जल्दी बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। तुम तुम बाहर जा सकते थे, क्यों नहीं गए? यू कुड हैव गो, यू कुड हैव गो आउट, ठीक है। यू कुड हैव गॉन आउट, बल्कि यू कुड हैव गॉन आउट। और तुम सब्जियां ला सकते थे, यू कुड हैव ब्रिंग, यू कुड हैव ब्रॉड द वेजिटेबल्स यस्टरडे, ठीक है। तुम, यू शुड हैव, चाहिए था तुम्हें, तुम ये चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड